बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उमर बेग, कैसे हैं आप लोग? How are you, my people, my family? Today we are going to install Oracle Apex 22.2 and ORDS 25.1 with Database 21C Express Edition pluggable in Windows 10 इंशाल्लाह। आज हम ये सीखेंगे कि किस तरह से Oracle Apex 22.2 और ORDS 25.1 को Database 21C Express Edition प्लगेबल के साथ विंडोज 10 में इंस्टॉल किया जाता है। क्रिएट फोल्डर इन C drive with the name 21CXE_22.2 and under this folder we further create 3 folders with the name DB, ORDS and ORDS conf respectively। सबसे पहले हम C drive के अंदर एक फोल्डर बनाएंगे 21CXE_22.2 के नाम का, और उस फोल्डर के अंदर हम मजीद 3 फोल्डर बनाएंगे DB, ORDS और ORDS conf के नाम के बिलतरतीब। Under ORDS conf folder we create folder with the name config। Under ORDS conf folder we create one folder with the name config। ORDS conf के फोल्डर के अंदर हम एक फोल्डर बनाएंगे config के नाम का। डाउनलोड Oracle Database 21C Express Edition through this link। Oracle Database 21C Express Edition को इस लिंक के ज़रिए से डाउनलोड कर लें। Unzip Oracle Database 21C Express Edition in the Oracle Database path। Oracle Database 21C Express Edition को हम अनजिप करेंगे इस पते पे। डाउनलोड ORDS 25.1 थ्रू दिस लिंक। ORDS 25.1 को इस लिंक के ज़रिए से डाउनलोड कर लें। Unzip ORDS 25.1 in ORDS folder which we have just created under 21CXE_22.2 folder under C drive, so we do not need to copy and paste ORDS folder। ORDS 25.1 के फोल्डर को हम एक्सट्रैक्ट करेंगे ORDS के फोल्डर के अंदर जो हमने अभी बनाया है 21CXE_22.2 के नाम का C ड्राइव के अंदर। डाउनलोड Oracle Apex 22.2 थ्रू दिस लिंक। Oracle Apex 22.2 को इस लिंक के ज़रिए से डाउनलोड कर लें। Unzip Oracle Apex 22.2 in 21CXE_22.2 folder under C drive, so we do not need to copy and paste Apex folder। Apex 22.2 के फोल्डर को हम एक्सट्रैक्ट करेंगे 21CXE_22.2 के फोल्डर के अंदर जो हमने अभी बनाया है C ड्राइव में। तो हमें Apex के फोल्डर को कॉपी करके उसको चिस्पा करना नहीं पड़ेगा। ओपन कमांड प्रॉम्प्ट एंड चेक जावा वर्जन। कमांड प्रॉम्प्ट खोलेंगे, जावा का वर्जन देखेंगे। द जावा वर्जन विच वी आर यूजिंग इज जावा 24.1। जो जावा का वर्जन हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो जावा 24.1 है। For ORDS 22.1 to 25.1 we need to install at least Java 11। ORDS 22.1 से 25.1 तक के लिए हमें कम से कम Java 11 को इंस्टॉल करना पड़ता है अपने सिस्टम में। Remember, before installing Oracle Database 21C Express Edition, we make sure that we do not have any other Database Express Edition, or we do not have any other database with the SID XE PDB1। Moreover, this installer will use SID XE for database creation। Any SID other than XE will not allow।
21C एक्सप्रेस एडिशन को इंस्टॉल करने से पहले हम ये ध्यान में रखें कि हमारे पास कोई ऐसा डेटाबेस नहीं होना चाहिए जो कि एक्सप्रेस एडिशन हो, और कोई ऐसा डेटाबेस भी नहीं होना चाहिए जिसके सेट जो है वो XEPDB1 हो, क्योंकि ये जो इंस्टॉलर है ये सेट XE बनाता है डेटाबेस को बनाते हुए, ये सेट XE रखता है डेटाबेस को बनाते हुए, कोई और सेट XE के अलावा काबिल कबूल नहीं होती। रन डेटाबेस सेटअप विद एडमिनिस्ट्रेटर राइट्स, डेटाबेस का सेटअप चलाएंगे एडमिनिस्ट्रेटर के राइट से। हिट नेक्स्ट बटन, नेक्स्ट का बटन दबाएंगे। Click on I accept the terms in the license agreement option, hit next button, I accept the terms in the license agreement के ऑप्शन को मुंतखब करेंगे, नेक्स्ट का बटन दबाएंगे। Change directory while hitting change button, define installation path till DB folder which we have just created under 21CXE underscore 22.2 folder in C drive and then hit next button। इंस्टॉलेशन का पता देंगे, चेंज का बटन दबा के DB के फोल्डर तक का जो हमने अभी बनाया है 21CXE underscore 22.2 के फोल्डर के अंदर जो कि C ड्राइव में, नेक्स्ट का बटन दबाएंगे। Enter database password and confirm password for this system and PDB admin from your choice, then hit next button। डेटाबेस पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड देंगे सिस्टम और PDB एडमिन को अपनी मर्जी से, और नेक्स्ट का बटन दबाएंगे। हिट इंस्टॉल बटन, इंस्टॉल का बटन दबा दें। Oracle Database 21C Express Edition has installed. Hit finish button, pluggable database name is XEPDB1 and port is 1521। Oracle Database 21C Express Edition इंस्टॉल हो चुका है। प्लगेबल डेटाबेस नेम जो है वो XEPDB1 है और पोर्ट जो है वो 1521 है। ओपन कमांड प्रॉम्प्ट एंड रीच वेयर एपेक्स फोल्डर इज अवेलेबल। कमांड प्रॉम्प्ट खोलेंगे और वहाँ जाएंगे जहाँ एपेक्स का फोल्डर मौजूद है। रन दिस कमांड, ये कमांड चलाएंगे। कनेक्ट विद दिस SSDB, कनेक्ट होंगे इस SSDB से। Now we will find whether our pluggable database is in read-write mode or not while running this command। अब हम ये कमांड चला के देखेंगे कि हमारा pluggable database जो है वो read-write mode में है या नहीं। So it is in read-write mode, ये read-write mode में है। In case if it is not in read-write mode, then we have to change its mode into read-write first while running this command and then move forward। अगर ये read-write mode में नहीं होता तो पहले हम इसको read-write mode में लेके आते, ये कमांड चला के और फिर आगे बढ़ते। Now run this command through PDBS। We run this command before every Apex script in order to make sure whether we connect with pluggable database or not। If we connect with pluggable database, we can run Apex script. If not, then we have to connect with pluggable database first while running this command and then run Apex script अब हम show PDBS की कमांड चलाएंगे। show PDBS की कमांड हम तमाम Apex के स्क्रिप्ट को चलाने से पहले चलाते हैं ताकि तसल्ली कर लें कि हम pluggable database से कनेक्ट हैं या नहीं है। अगर हम pluggable database से कनेक्ट हैं तो हम Apex का स्क्रिप्ट चलाएंगे। अगर हम pluggable database से कनेक्ट नहीं है तो पहले हम pluggable database से कनेक्ट होंगे, ये कमांड चला के और फिर Apex का स्क्रिप्ट चलाएंगे। और जब हम ये कमांड चलाएं तो हम ये तसल्ली कर लें कि सेशन ऑल्टर्ड लिखा हुआ आ गया है, क्योंकि अगर सेशन ऑल्टर्ड लिखा हुआ नहीं आया तो पहले हमें सिस के यूज़र से कनेक्ट होना पड़ेगा और फिर हम ये कमांड चलाएंगे। When we have run this command, we make sure that session altered appear. If not, then we have to connect with the sys user first and then run this command। Now install Apex by running this command। अब हम Apex को इंस्टॉल करेंगे।
ये कमांड चला के Oracle Apex 22.2 has installed। Oracle Apex 22.2 जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। Run this command, username will be admin, provide email and password from your choice। अब हम ये कमांड चलाएंगे, यूजर नेम जो है वो एडमिन रहेगा, ईमेल और पासवर्ड हम अपनी मर्जी से दे दें। Run this command and before we run this command we make sure that we connect with the sys user। अब हम ये कमांड चलाएंगे और ये कमांड चलाने से पहले हम तसल्ली कर लेंगे कि हम sys के यूजर से कनेक्ट हैं। So we connect with the sys user। If we do not connect with the sys user then we have to connect with the sys user first and then run this command। अगर हम sys के यूजर से कनेक्ट नहीं होते तो पहले हमें sys के यूजर से कनेक्ट होना पड़ता और फिर हम ये कमांड चलाते। Run this command, provide password for Apex listener and Apex REST public user from your choice। अब हम ये कमांड चलाएंगे और पासवर्ड देंगे Apex लिसनर और Apex REST पब्लिक यूजर को अपनी मर्जी से। एग्जिट कमांड प्रॉम्प्ट से बाहर निकल आए। Open command prompt with administrator rights and reach where bin folder is available under ORDS folder। कमांड prompt खोलेंगे एडमिनिस्ट्रेटर के राइट से, वहां जाएंगे जहां बिन का फोल्डर मौजूद है ORDS के फोल्डर के अंदर। रन दिस कमांड, ये कमांड चलाएंगे। ऑप्शन विल बी 1, हिट एंटर बटन, ऑप्शन 1 रहेगा, एंटर का बटन दबाएं। ऑप्शन विल बी लोकल होस्ट, हिट एंटर बटन, ऑप्शन लोकल होस्ट रहेगा, एंटर का बटन दबाएं। My port is 1521 so I will hit enter button। if your port is 1521 then do the same। if your port is different then define your port first and then hit enter button। मेरी पोर्ट 1521 है इसलिए मैं एंटर का बटन दबाऊंगा। अगर आपकी पोर्ट भी 1521 है तो आप भी एंटर का बटन दबाएं। अगर आपकी पोर्ट मुख्तलिफ है तो पहले आप अपनी पोर्ट लिखें और फिर एंटर का बटन दबाएं। प्रोवाइड प्लगएबल डेटाबेस नेम, प्लगएबल डेटाबेस का नाम देंगे। एंटर एडमिनिस्ट्रेटर यूजर नेम एंड प्रोवाइड पासवर्ड फॉर इट। एडमिनिस्ट्रेटर यूजर नेम विल बी sys। एडमिनिस्ट्रेटर यूजर नेम देंगे जो कि sys है और उसको पासवर्ड देंगे। सेलेक्ट 3, हिट एंटर बटन, 3 को मुंतखब करेंगे, एंटर का बटन दबाएंगे। सेलेक्ट S, हिट एंटर बटन, S को मुंतखब करेंगे, एंटर का बटन दबाएंगे। एंटर डेटाबेस पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड फॉर ORDS पब्लिक यूजर फ्रॉम योर चॉइस। डेटाबेस पासवर्ड देंगे और कंफर्म पासवर्ड देंगे ORDS पब्लिक यूजर को अपनी मर्जी से और एंटर का बटन दबाएंगे। सेलेक्ट 9, हिट एंटर बटन, 9 को मुंतखब करेंगे, एंटर का बटन दबाएंगे। कॉपी इमेजेस फोल्डर, कॉपी करेंगे इमेजेस के फोल्डर को
फ्रॉम दिस पाथ, इस पते से, एंड पेस्ट इट टू दिस पाथ, और इस पते पे चस्पा करेंगे। Now provide a path to Apex static resource location, tell images folder very carefully। अब हम Apex static resource location को बता देंगे images के फोल्डर तक का बहुत एहतियात से। We use here a forward slash instead of backward slash। हम यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश का इंतखाब करेंगे बैकवर्ड स्लैश के बजाय। If you want any other changes you can make it, however we are satisfied with these changes। अगर आपको कोई तब्दीली करनी है तो आप कर सकते हैं, अलबत्ता हम इन तब्दीलियों से मुत्तफिक हैं। एंटर ए, सेलेक्ट ए देन हिट एंटर बटन। ए को मुंतखब करेंगे, एंटर का बटन दबाएंगे। When Oracle REST data services initialize a player, we can access Oracle Apex 22.2 through this link। जब Oracle REST data services initialize आ जाएगा तो हम Oracle Apex 22.2 को इस लिंक के जरिए से चला सकते हैं। Remember, do not close this command prompt because if we close this command prompt, we cannot access Oracle Apex 22.2। कमांड प्रॉम्प्ट को बंद मत करिएगा, क्योंकि अगर हमने इस कमांड प्रॉम्प्ट को बंद कर दिया तो हम Oracle Apex 22.2 को इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। Oracle Apex 22.2 है इंस्टॉल। Oracle Apex 22.2 जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। Stop it while hitting Ctrl+C button or close it। Open command prompt with administrator rights and reach where bin folder is available under ORDS folder। कमांड प्रॉम्प्ट खोलेंगे, एडमिनिस्ट्रेटर के राइट से वहां जाएंगे जहां बिन का फोल्डर मौजूद है ORDS के फोल्डर के अंदर, और वहां जाने के बाद ये कमांड चलाएंगे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।